Good afternoon, people. Welcome to lecture number 7, Motion in a Straight Line. And आज का important idea है, I think this is the last topic of the chapter. This is called relative speed. What is relative speed? Whenever you are looking at the speed of one body with respect to another, that speed is called relative speed. So, for example, you are going at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, अपनी बाइक पे जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर पे, तो वो 50 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड है, आपका स्पीडोमीटर दिखा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, किसके रिस्पेक्ट टू दिखा रहा है? Isn't that with respect to the stationary ground? So, हम जो भी स्पीड कहते हैं वो किसी ना किसी चीज के रिलेटिव होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जा रहा है भाई एट स्पीड ऑफ दिस दिस दिस, तो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ग्राउंड. तो रिलेटिव स्पीड को आप डिफाइन किया जाएगा कि द स्पीड और वेलोसिटी, यू कैन कॉल इट, ऑफ अ बॉडी with respect to, now I'm not going to always write with respect to, I'm going to write it as WRT, with respect to another body is called relative speed. जब मैं वेक्टर्स करूंगा तब relative velocity आ जाएगी. Now let me have two bodies. So consider two bodies. अपने पास दो bodies है, A and B, which are moving with speeds VA and VB respectively. दो bodies है मेरे पास. बॉडी ए जो स्पीड VA के साथ मूव कर रहा है, एंड बॉडी B which is moving with speed VB. Now comes the most important formula, people. ध्यान से देखें. The relative speed of body A with respect to, WRT means with respect to, body B is relative speed of A with respect to B. We'll call it as VAB. Alright, so हम इस तरह इंटरप्रेट करते हैं स्पीड ऑफ A with respect to B. जिसका आप देख रहे हो, स्पीड ऑफ बॉडी A का देख रहे हो, तो ये पहले आएगा हमेशा, और जिसके रिस्पेक्ट टू देख रहे हो वो पीछे आएगा. So VAB is simple, VA minus VB. So one equation that can change everything. So the relative speed of body A with respect to body B is VAB is VA minus VB. Similarly, I'm sure somebody can tell me what will be the relative speed of body B with respect to A. अब जैसे यहाँ पे relative speed of A with respect to B करा हमने, तो it was VAB. तो अब relative speed of B with respect to A क्या होगा भाई? Analogically VBA, it's not V bar, it's VBA. Velocity या speed of B with respect to A is VB minus V. एकदम simple formula, एकदम simple, बराबर. So VAB, relative speed of A with respect to B, is VA minus VB, and similarly relative speed of B with respect to A, VBA, is VB minus VA. लगाना भी उतना ही आसान है, बस थोड़ी सी हमको केयर रखनी पड़ेगी, बिकॉज भले स्पीड्स हैं बट हो सकता है बॉडी अलग अलग दिशा में जा रहा हो. Isn't that possible? For example, let me take a very small example. A person is standing on the road. Let us say somebody is standing on the road. Let us say Vijay is standing on the road. And ये एक बंदा साइकिल पे जा रहा है, और ये बंदा साइकिल पे जा रहा है. वो कौन जा रहा है? Let us say युग जा रहा है साइकिल पे, and he is going in this direction at a speed of 10 meter per second. And somebody is going in a car. अजीब सी कार है. Let us say Preet is going in this car and he is moving in this direction with a speed of 20 meter per second. Do you understand the idea? Vijay, he is standing on the road stationary. Yug is moving in this direction with a speed of 10 meter per second, whereas Preet is moving in this direction with a speed of 20 meter per second. अब आप देखें दोनों तरफ जावन हो रहा है.
इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, आपको किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। एज सिंपल एज इट गेट्स। क्योंकि सपोज कोई बॉडी ऊपर जाता है, ऊपर जाने वाले बॉडी को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो बट ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी नीचे आ रहा है तो उसको आप क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव तो नहीं ले सकते बिकॉज उसका डायरेक्शन तो उल्टा है, तो उसको आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज योर चॉइस। आपको युग के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, गो अहेड। आपको प्रीत के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, बी माय गेस्ट, नो प्रॉब्लम। ये कन्वेंशन एब्सोल्युटली आपके और सम के ऊपर डिपेंड करता है कि सम क्या चाहता है तुमसे। या तो सम स्पेसिफाई कर दे कि हमको भाई युग का डायरेक्शन पॉजिटिव लो, ओके, या राइट हैंड साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव लो, नो प्रॉब्लम। अगर वो नहीं कहते तो वो पूरा हमारे ऊपर है। सो इस तरफ का डायरेक्शन, इस तरफ जो भी बॉडी जा रहा है उसकी स्पीड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं एंड कॉन्सिक्वेंटली इस तरफ जो बॉडी जा रहा है उसकी स्पीड को मैं नेगेटिव लूंगा। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? सबसे पहली बात, विजय यहां खड़ा है, युग यहां जा रहा है, प्रीत वहां जा रहा है। हमने इस डायरेक्शन को, हमको अच्छा लगा ये डायरेक्शन है, आपको वो अच्छा लगता है वो ले लो, नो प्रॉब्लम। सो इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है, उस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ युग विथ रिस्पेक्ट टू विजय? रिलेटिव स्पीड ऑफ युग विथ रिस्पेक्ट टू विजय। सबसे पहला फॉर्मूला, हर चीज में सबसे पहला फॉर्मूला आता है, फिर बाकी सब्स्टिट्यूशन बैठेगा। सो इट विल बी वी वाई वी, ओह माय गॉड, युग का y है, विजय का v है। सो वी वाई वी इज, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, वी वाई माइनस वी वी, वेलोसिटी ऑफ युग माइनस वेलोसिटी ऑफ विजय। सो नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, भाई वेलोसिटी ऑफ युग दिख रही है आपको, ये रही, कितनी है, 10, ओके। किस दिशा में है, इस दिशा में, और इस दिशा को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव। तो ये 10 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। सो वी वाई वी इज, वी वाई कितना, 10, पॉजिटिव, माइनस, भाई विजय की स्पीड कितनी है, तो बोले सर विजय तो स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी की स्पीड कितनी होती है, 0, तो 10 माइनस 0 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई अपोलोजाइज, मैंने ये वी वाई वी ऐसा ले लिया, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ युग with respect to Preet. Okay, now this becomes tricky. Remember, relative speed of Yug, तो Vy P है ना, speed of Yug with respect to Preet is Vy minus Vp। फॉर्मूला में कतई कोई बदलाव नहीं आता, फॉर्मूला इज सैक्रोसैंक्ट, फॉर्मूला इज सैक्रोसैंक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। Vy, भाई युग की स्पीड कितनी है, 10, किस डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव, तो हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस। अब प्रीत का देखो, प्रीत की स्पीड कितनी है, 20, बरोबर सर, तो क्या हम यहां 20 लिखेंगे, नहीं, हम प्रीत के डायरेक्शन, 20 तो देख लिया, हम प्रीत का डायरेक्शन देखेंगे, प्रीत का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। सो प्रीत की स्पीड जो 20 है उसको नेगेटिव लिया जाएगा। सो दिस इज -20 and 10 minus 20 is 10 plus 20 which is 30 meter per second। इसका मतलब है युग की स्पीड अकॉर्डिंग टू प्रीत कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब प्रीत को क्या लगेगा, युग कितनी स्पीड पे जा रहा है, 30, तो इसका मतलब यह है, सो अकॉर्डिंग टू प्रीत, तुम प्रीत के साथ अगर बैठे हो और तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम देखोगे, तुम बोलोगे अरे युग क्या फास्ट जा रही है, एक्चुअली युग फास्ट नहीं जा रहा है, युग तो 10 पे ही जा रहा है, पर क्योंकि प्रीत उल्टी दिशा में तेज जा रहा है इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है कि युग की स्पीड भी ज्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू प्रीत, युग इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड।
इज दिस अंडरस्टैंडेबल? एब्सोल्युटली। अरे एक और एग्जांपल लेते हैं, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक एग्जांपल लेते जाएंगे। हम ट्रेन में भी बैठे हैं बहुत बार, एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम ट्रेन में बैठे हैं, राजधानी में बैठे हैं और धमाधम चल रही है वो, और अचानक सामने से दूसरी ट्रेन आती है, धड़न 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 धड़न, दिल दहल उठता है हमारा। हमको लगता है यार क्या फास्ट जा रहा है, ये बहुत आप फास्ट जा रहा है, ये आगे जाके किसी को ठोकेगा। बट क्या वो सचमुच में इतना फास्ट जा रहा है? हमको लगता है सारा 200 की स्पीड पे होगा यार। हम कभी कभी तो नाम भी नहीं पढ़ पाते कौन सी ट्रेन है वो। तो क्या वो सचमुच इतना फास्ट जा रहा है या नहीं? लेट अस सी। सो एक और एग्जांपल लेते हैं। दो ट्रेनें हैं, लेट अस से दिस इज ए एंड दिस इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, एंड दूसरी ट्रेन है बी एंड दिस इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। राजधानी की स्पीड है, ये अपनी नॉर्मल ट्रेन है, ये राजधानी है। नाउ उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। अब यहां पे तुम सीधा बोलोगे सर पहले फॉर्मूला, ओके, स्पीड ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सो वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी। अब किसी को उतावड़ से डाल दूं मैं? अरे बेटा डालना तो है, पर पहले नक्की तो कर ले किसका पॉजिटिव लेना है किसका नेगेटिव लेना है। अब तुम बोलोगे सर मेरे लास्ट टाइम आपने ये पॉजिटिव लेना, इस बार ये लेना। हाँ ठीक है, पर क्योंकि एक ही सवाल है तो जो ट्रेन का हमको स्पीड देखना है वही पॉजिटिव ले, जिसका देखना है उसी का पॉजिटिव ले रहे हैं, दूसरा कोई सवाल तो है नहीं। तो ये वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूं, ये वाले डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लेता हूं। मैं फिर से आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको पॉजिटिव लें, बट क्योंकि हमको ट्रेन ए का ही देखना है, दूसरा कोई सवाल नहीं है, एक ही सवाल है, तो हम जिसका देख रहे हैं उसका ही पॉजिटिव लेंगे, बराबर, एज एन आइडिया। और उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, तो वीए कितना है 80, बट ऑफ कोर्स पर कौन सी डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो वीए कितना हो गया 80 माइनस, अब वीबी की बारी, वीबी कितना है 100, पर कौन सी दिशा में है, नेगेटिव दिशा में है, सो दिस इज गोइंग टू बी minus 100 and 80 minus 100 is 80 plus 100, so this would be 180 kilometer per hour। अर्थात velocity of A with respect to B, B में बैठे हुए इंसान को क्या लगेगा कि A कितनी स्पीड पे जा रहा है, 180। माय गॉड, धन धनाते हुए निकल गया एकदम फास्ट, पता ही नहीं चला गाड़ी कौन सी थी, एकदम थाना 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 थाना, सिर्फ लाइट नजर आई छप 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 खिड़कियों में से निकलती हुई, बाकी कुछ नजर नहीं आया, कोई बंदा नहीं कुछ नहीं। तो अकॉर्डिंग टू बी ए इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। ऑन दी अदर हैंड हम तो बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, तो बॉम्बे में हमने देखा कि सपोज एक ट्रेन यहां से निकल रही है एंड उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और बाजू में फास्ट वाले ट्रैक से दूसरी ट्रेन निकल रही है, उसकी भी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, यहां देखिए जरा, relative speed of A with respect to B, VAB is VA minus VB, but of course अब ये मत पूछना सर कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लो, भाई एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो एक ही दिशा में जाने वाले दूसरी कोई दिशा ही नहीं है, तो ये दोनों इसी तरफ जा रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव लो। यू विल बी फुलिश इफ यू टेक, इसको नेगेटिव लेता हूं सर मजा आएगा, तो पॉजिटिव किसको लेगा, इसको लेगा, यहां तो कोई जा ही नहीं रहा, तो इस एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसको पॉजिटिव ले ले भाई। तो VA कितना 50 माइनस VB कितना 50, पर सेम डायरेक्शन, वाओ, तो द आंसर इज 0। सो अकॉर्डिंग टू B A की स्पीड कितनी है 0, मतलब दैट इज अकॉर्डिंग टू B ट्रेन A इज एट रेस्ट, 0 मतलब एट रेस्ट। बी वाला ए वाली ट्रेन में एक्चुअली देख के हाय हेलो कर सकता है, कैसा भाई सब बढ़िया, घर जा रहे हो, अच्छी बात है, हाँ वेरी गुड, कोई पहचान वाला दिख गया, जब तक दोनों ट्रेनें साथ में जा रही है तब तक बतिया लगे, कैसे घर में सब बढ़िया, भी बच्चे फर्स्ट क्लास, ओके चल भाई राम राम। तो दोनों एक दूसरे का शक्ल तो देख ही पा रहे हैं, पर साथ में बात भी कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बी ए इज एट रेस्ट। यही होता है ना आपके साथ,
आप जा रहे हो स्कूटर पे एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, बाजू में आपका दोस्त जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर बाइक पे जा रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चले जा रहे हैं और बतिया रहे हैं कैसा भाई स्कूल में कितना कोर्स खत्म हुआ, कैसा है घर पे सब आंटी वगैरह अंकल वगैरह सब बढ़िया, चले जा रहे हैं। उन दोनों को तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि अकॉर्डिंग टू बी ए इज एट रेस्ट, दोनों सेम चले जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर ए यहां से जा रहा होता और बी यहां से जा रहा होता तो ये 40 तो 40 माइनस माइनस 40 80 kmph हाई करने से पहले तो वो पहुंच गया कहीं और, तुम हेलो करो तब तक तो आगे निकल गया 100 मीटर दूर पहुंच गया। तो सब कुछ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। So I hope this is understandable. So this is how it is. Let's take one more example and let's complete this idea. एक ऊपर नीचे वाला भी एग्जांपल ले ही लेता हूं, लगे हाथों ले ही रहे तो ले ही लेते हैं। So for example, ये छोटा सा एग्जांपल है, सपोज ये बॉडी 1 है and it is moving upwards with a speed of 15 meter per second, and this is body 2 and it is moving downwards with a speed of let us say 15 meter per second, 25 कर लेते हैं। And they've asked you, what have they asked you? Relative speed of 2 with respect to 1. Relative speed of body 2 with respect to body 1. अब आपके ऊपर है, साइन कन्वेंशन, बगैर साइन कन्वेंशन के तो तुम बोलोगे सर पहले फॉर्मूला लिख दो कि V21 is V2 minus V1, फॉर्मूला आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन, पर सब्स्टिट्यूशन के पहले साइन कन्वेंशन कैसे ले? सर हमने हमेशा अभी तक काइनेमैटिक्स जो भी किया है उसमें ऊपर जाने वाली वस्तु होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और नीचे जाने वाली वस्तु जैसे ग्रेविटी था तो हमने उसको नेगेटिव लिया था, तो वील कीप द सेम साइन कन्वेंशन, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। सो ऊपर जाने वाली स्वर्गलोक पॉजिटिव और नीचे पाताल लोक नेगेटिव। सेट हो गया। ऊपर की तरफ की जो स्पीड्स होंगी, जो वेलोसिटीज होंगी उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, नीचे की तरफ की जो भी स्पीड्स, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन जो भी होगा उसे नेगेटिव लेंगे। ओके, वी आर डन, गुड। आ जाओ V2 की वैल्यू कितनी है सरकार? 25। साइन कन्वेंशन को भूल गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। 25 किस डायरेक्शन में भाई? नीचे, और नीचे वाली चीज को क्या लेते हैं हम? नेगेटिव। सो -25 माइनस, अब V1 कितना है? 15। किस डायरेक्शन में? ऊपर। सर पॉजिटिव। ओके, नो चेंज। 15 का पूरा 15 लगा डाला। -25 माइनस 15 इज -40 मीटर पर सेकेंड। बराबर है। दिस इज योर आंसर एंड दैट इज हाउ द एंटायर कुकी क्रम्बल्स। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और एग्जांपल लूं तो आओ ले लेते हैं एक और एग्जांपल, छोटा सा, मुन्ना सा, नन्हा सा। एग्जांपलों की कोई कमी नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। एग्जांपल में क्या है? अपना एक साइकिल है और इस पे बंदा बैठा। कौन बैठा? अपना दिव्य बैठा है एंड ही इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक गड्डी है और गड्डी में जॉन बैठा है, वो जेनिल बैठा है। ओके, एंड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एंड ये एक बाइक है, तो मेरे को बाइक का डायग्राम नहीं आता, कावासाकी निंजा। और इस पे कौन बैठा है? दिव्य, ये जेनिल और ये आगम बैठा। एंड आगम इस तरफ जा रहा है स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो वी आर ऑल सेट। Divya moving in that direction, Agam moving in that direction, Janil moving in the opposite direction. कुछ भी करने से पहले पॉजिटिव नेगेटिव का विचार अत्यावश्यक। किसका पॉजिटिव ले सर? इंकी पिंकी पोंकी भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर क्योंकि दिव्य और आगम दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ज्यादा लोग इस दिशा में जा रहे हैं, तो उस दिशा को पॉजिटिव कंसिडर करने का हम आइडिया ले सकते हैं। तो ये दिशा को मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया, ये दिशा को नेगेटिव कंसिडर किया। सेट हो गया सब कुछ? ओके। माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ दिव्या विथ रिस्पेक्ट टू आगम? सिंपल, एकदम सिंपल। रिलेटिव स्पीड ऑफ दिव्या विथ रिस्पेक्ट टू आगम, सो VDA फॉर्मूला इज इंटैक्ट, VD माइनस VA। भाई VD कितना है? 10। किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव, सो सीधा 10 माइनस। VA कितना है? 20। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव, सो 10 minus 20 and it is -10 meter per second. Similarly, second question,
relative speed of Divya with respect to Janil. Relative speed of Divya with respect to Janil. So VDJ, velocity of Divya with respect to Janil, is VD minus VJ. Simple. VD कितना है 10, ओकी डोकी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, वी आर ऑल गुड. माइनस VJ कितना है जनरल का 30, बट देयर इज अ बिग बट हियर, 30 पर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव. ओ तो माइनस 30 एंड 10 माइनस माइनस 30 इज 10 प्लस 30 which is 40 मीटर पर सेकेंड. एंड फाइनली एक और प्रश्न पूछ लेते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ जेनिल विथ रिस्पेक्ट टू आगमलाल. क्या होगा भाई फॉर्मूला, VJA. फॉर्मूला में कतई चूक नहीं होनी चाहिए, कतई गलती से भी नहीं पढ़ना रिलेटिव स्पीड ऑफ जेनिल विद रिस्पेक्ट टू आगम. तो VAJ नहीं, पहला कौन आया जेनिल, तो उसका स्पीड लिया जाएगा. किसका देख रहे हो, जेनिल का. किसके रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट टू देख रहे हो पीछे आएगा. तो VJA इज VJ माइनस VA. भाई VJ कितना है 30 पर डायरेक्शन नेगेटिव, ओ सो माइनस 30 माइनस VA कितना है 20, ओके डायरेक्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं. वाओ, सो माइनस 50 मीटर पर सेकेंड. इज दिस एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल लेडीज एंड जेंटलमैन? कोई शक रिलेटिव स्पीड में नहीं? ओके तो अब आगे बढ़ते हैं. रिलेटिव स्पीड का छोटा भाई, रिलेटिव स्पीड समझ में आया तो ये समझ में आएगा, इट इज कॉल्ड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. ओके फॉर्मूला को याद रखना रिलेटिव स्पीड के, ये बात है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट? भाई दो बॉडीज हैं, हमारा सबसे पहला तो समा यही होता है, कंसिडर क्या करना है, कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी. ओके दो बॉडीज है ए एंड बी. अच्छा अब ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं. एट टाइम t equal to 0, the bodies A and B are at positions XOA origin से लिया हुआ है, and XOB respectively from the origin. भाई जैसे मैंने बताया था मेरा ऑब्जर्वेशन किसी एक पॉइंट से होने वाला है ताकि कोई दिक्कत ना रहे. तो at t equal to 0 जब मैंने देखना शुरू किया, जब हमने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया, तो बॉडी ए कहां पे था, XOA पे ओरिजिन से, और बॉडी बी कहां पे था, XOB. लेट मी शो यू, क्योंकि दो बॉडीज को दिखाना है तो मैं दो ओरिजिन बनाऊंगा. एक्चुअली ओरिजिन एक ही होता है. ओके दो सब कुछ मेजर यहीं से करना है, ओरिजिन यही है. तो ब्लैक कलर में मैं ए का समा बताऊंगा आपको. सो ब्लैक कलर में जैसे एट टाइम t equal to 0 बॉडी ए कहां पे था, कहीं यहां पे था, एंड ये टाइम t equal to 0 का आइडिया है. कितना डिस्टेंस है ये, XOA. लेट मी राइट इट नाइसली, ये XOA एंड दिस इज एट टाइम t equal to 0. उसी तरह मैं ब्लू में B का बताऊंगा. लाइन बरोबर है? ओके मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ B का बता रहा हूं. तो B कहीं यहां पे पकड़ लो, एंड दिस इज XOB. मैंने जब ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया, t इक्वल टू 0 पे बॉडी ए पे था, XOA डिस्टेंस था फ्रॉम द ओरिजिन, एंड बॉडी बी यहां पे था, XOB डिस्टेंस था फ्रॉम द ओरिजिन. इसके बाद ए और बी ने चलना शुरू किया. ओके नो प्रॉब्लम. नाउ ए एंड बी स्टार्ट मूविंग एट स्पीड्स VA and VB respectively. ओके तो A मूव करने लगा विद स्पीड VA और B मूव करने लगा एट स्पीड VB. अब क्योंकि दोनों मूव करने लगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, तो 0 पे यहां पे था. लेट्स से एट टाइम t इक्वल टू t, एट t इक्वल टू t A and B reach points A dash and B dash respectively. So let us पहले देख लेते हैं कहां पहुंचा ये, कहीं यहां पहुंचा. लेट अस से दिस इज कॉल्ड A dash
दिस इज द सिचुएशन एट टाइम t इक्वल टू टी, एंड b कहीं यहां पहुंचा होगा, b डैश, ये a डैश है, ये b डैश, दिस इज द सिचुएशन एट टाइम t इक्वल टू टी। नाउ कुछ भी करने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर सपोज मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं सर मूव कर रहे हैं एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, बराबर, सर मूव कर रहे हैं एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करूंगा मैं? सर ये कैसा गंभीर प्रश्न पूछ लिया? नहीं भाई, गंभीर प्रश्न नहीं, एकदम आसान प्रश्न है। मैं कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रहा हूं, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड, आप समझ रहे हो? 2 मीटर पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में बंदा कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है? 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर। तो 5 सेकंड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी हो सकता है, नहीं तो मेरे पास एक सुंदर फॉर्मूला है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड मोशन, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, v इनटू t। तो वेलोसिटी कितनी है? 2, टाइम कितना है? 5, 2 5 इज 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। उसी तरह अगर बॉडी ए मूव कर रहा है स्पीड va के साथ, तो 0 से लेकर t तक कितना टाइम गया? t टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ होगा? सर सिंपल है ये, थोड़ा सा इधर उधर कर लेते, va को नीचे लगा देते। सो स्पीड va टाइम t कितना डिस्टेंस? इजंट दिस va into t? एंड सिमिलरली b वाला स्पीड vb से चल रहा है, टाइम t में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सेम टू सेम सर, vb into t। बात समझ में आई आपको? सो a कवर करेगा, a से a डैश तक पहुंचा टाइम t में स्पीड va के साथ, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? va into t। एंड b वाला b डैश पे पहुंचा स्पीड vb के साथ उसी टाइम t में कितना डिस्टेंस कवर किया? vb into t। तो इस तरह इन दोनों का ये डिस्टेंस कवर हुआ। ओरिजिन से यहां तक हो गया xa और ओरिजिन से यहां तक हो गया xb, जिसका इक्वेशन मैं अभी लिखने वाला हूं। जस्ट चेक इट आउट। क्या होगा a ने? va इंटू टी, va इंटू टी, हाँ जी कि ना जी कि है जी? नहीं नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हो कि है जी की गाल कर रहे हो तुम। स्पीड va है, टाइम 0 से लेकर t मतलब t, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? va इंटू टी। उसी तरह हे तस्वीर आप है वहां पे कि चाय पीने चली गई? वेरी गुड। b चल रहा है स्पीड vb पे, उसको भी 0 से लेकर t टाइम ही हुआ, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? vb टाइम t, t ओनली t। ये फॉर्मूला यूज करने का है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड કેટલી છે? vb, टाइम કેટલો થયો? t, तो કેટલું डिस्टेंस कवर કરશે? vb into t। જેમ a કેટલું डिस्टेंस कवर કર્યું? va into t, तो b કેટલું કરશે? वेरी गुड। ये इसका आवाज आयुषी जैसा है नहीं? है ना आयुषी? आयुषी का है? आयुषी है ना? आयुषी तेरा माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ अभी दिया। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, अभी ये तस्वीर बोल रही है, आयुषी बोल रही है, पता नहीं चल रहा है कुछ। ओके ऑलराइट पीपल, ध्यान से देखें, ये दोनों डायग्राम मैंने बनाए हैं, ध्यान से देखें। 0 पे बॉडी ए यहां था और टाइम t पे बॉडी यहां है। डोंट यू अग्री द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ए इज दिस मच? ओरिजिन से सब कुछ मेजर होता है, तो
This is the total distance covered by body A, the position of body A. So from the diagram, can I say XA is XOA plus VA into T? Can I say that? This whole thing, position of A, isn't it XOA plus VA into T? Not many people are saying yes sir. Is there a problem? Yes, sir. What is the problem? एक सेकेंड, जिसको है उसको पूछ लेता हूं. बॉडी ए पहले कहां था? यहां पे था. ओके, उसके बाद यहां पे आया. ये पोजीशन है बॉडी ए का एट टाइम टी. तो इस पोजीशन को मैं नाम देता हूं एक्सए. कैन आई से एक्सए इज एक्सओए प्लस वीए इंटू टी? दिस प्लस दिस, हाँ या ना? At time t, body A reaches A dash and body B reaches B dash. So position of A, body A at time t is XA is XOA, means position of A at time t equal to 0 plus VA into T. Similarly, anybody can tell me position of body B at time t equal to T? Anybody? एक सेकेंड. हाँ, Who is मैं बोलूं? कौन है? हाँ, कौन था वो? मैं बोलूं? हाँ बोल. ए उजान जी, अरे शाश्वत तू बता. हाँ सर. जल्दी. XB is equal to X0B plus VBT. शाबाश. XB is XOB plus VB into T. Is this much agreeable? बराबर. So this is position of A and this is position of B. Now लफड़ा शुरू होता है. Now the relative displacement of body B with respect to body A is, भाई relative speed of body B with respect to A बोला होता तो तुम क्या देते? VBA ना. तो अब मैंने relative displacement मतलब relative position change of body B with respect to A, body A मांगा है. So it is going to be called XBA. And anybody can guess what this formula will be? XB minus XA. कोई शक? XB वाले को यहां लगाएंगे, XA वाले को यहां लगाएंगे और धमाधमी मचा देंगे. उसके लिए जगह की जरूरत है, तो ये पूरा उड़ा दिया जाएगा. चलो भाई, कोई जो आ रहा है मेरे साथ. सो XB minus XA is, भाई हाउ मच इज XB? XB XOB plus VB into T. XOA. तुम लोग जब तक बोलोगे तब तक तो खत्म हो जाएगा. तो फाइनल इक्वेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये XOB और XOA को ले लो बाजू में. XOB माइनस XOA प्लस, और ये TT वाले को कॉम्बाइंड VB माइनस VA इंटू T. वाह, जबरदस्त इक्वेशन भाई. सो position of B with respect to A is XB minus XA. Is position of B at time t equal to 0, position of A at time t equal to 0, XOB minus XOA plus velocity of B minus velocity of A into time t. And यहां पे मैं एक नोट लिखना चाह रहा हूं. वैसे खास इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी जेई नीट में भी काम आता है. If
A and B move in the same direction, मतलब A भी इस तरफ जा रहा है, B भी इस तरफ जा रहा है, move in same direction, then at the point when A overtakes B, then xb minus xa is equal to 0. सर कैसे? अरे सपोज कीजिए ये A है, यहां पे ये B है, ये B है, ये A है, ये चला टक, यहां पे A ओवरटेक करने लगा. डू यू अग्री इस पॉइंट पे xb और xa दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई? सो xb माइनस xa उस पॉइंट पे कितना हो जाता है? 0. And secondly, if A and B move in opposite directions, then at the point when they cross each other, suppose एक बंदा यहां से निकल रहा है, ए यहां से निकल रहा है, बी यहां से निकल रहा है, इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तब एक्स बी माइनस एक्स ए बिकम्स 0. So when they cross each other, then where is the pen? Then 2xb minus xa is equal to 0. बराबर है, कोई दिक्कत नहीं. ओके, ये दोनों ले करके मैं करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर. आप लोग रेडी है? लास्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द चैप्टर, इलस्ट्रेशन 3.9. इलस्ट्रेशन 3.9 टेक्स्ट बुक खुली? ओके, इलस्ट्रेशन 3.9 क्या कहता है? लेट अस सी. Two parallel rail tracks run north south. ओके, ट्रेन A moves north, तो ये A है, ये नॉर्थ है. ये कितनी स्पीड पे जा रही है? 54 किलोमीटर पर आवर. 54 किलोमीटर पर आवर. एंड ट्रेन B साउथ में जा रही है, साउथ स्टैंड. ये भी इस तरफ जा रही है, साउथ. ये नॉर्थ है, ये साउथ है. तो VB कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर. ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A? अच्छा भाई, हमको तो नॉर्थ पसंद है, तो ये जो तरफ नॉर्थ है ना, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो इस तरफ साउथ को हम क्या लेंगे? आई शाबाश. अच्छा, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B with respect to A? Anybody giving me an idea? युग, युग बोल रहा है. अरे एक युग इंतजार करवाएगा क्या? हाँ, तो आगे बोलो, बाकी मुझे ही करना है क्या? जल्दी जल्दी जल्दी. वेरी गुड. कितना हुआ महाराज? कितना? 144 ना? तुमको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो. यू कैन कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, आई डोंट माइंड, पर सब कुछ किलोमीटर पर आवर में ही है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. मीटर पर सेकंड में करना है, कर सकते हैं. गवर्नमेंट को इच्छा हो रही है, हाँ, ना करो तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं. तो 18 8 जा 8 5 जा 40 माइनस 40 है -40 मीटर पर सेकंड. ओके.
सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड with respect to B. Yes, is there anybody? Velocity of ground with respect to B. VGB. Isn't it VG minus VB? और भाई ग्राउंड की स्पीड क्या होती है? जीरो 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 माइनस, और VB कितना है? ये हाँ, ये छोटी सी दिक्कत आंसर कैंसिल करवा सकती है। आंसर कितना हो गया? और तुमको अगर करना है तो इंटू 5/18, 18 फाइजा 5 फाइजा आप चाहते हो मैं यहां लिखूं इंटू 5/18 एंड सी। अभी एक बंदर आया किधर से तो भी, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। अच्छा बंदर किधर है? अपने लाल कलर से बंदर बनाते। एक गड्डी ऐसी जा रही है ना तो बंदर उल्टा जा रहा है ना? बंदर ए, ये मंकी रहने का, ये मंकी कैसा जा रहा है? ऐसा, ये मंकी है। सो ये मंकी का पैर, मंकी ऐसा जा रहा है एक के उल्टा, तो हमको वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ मंकी फाइंड करना है। गिवन वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इस कितना 18 है ना? इस तरफ भाई, उस तरफ क्या ले रहे हैं हम? हाँ तो अभी लूंगा मैं। अच्छा ए भाई, एनीबॉडी गिविंग मी इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ मंकी with respect to train A? Anybody giving me equation? VMA. वाह एकदम सॉलिड करा मैंने। VMA कितना है? यहाँ सबसे बड़ी गलती हो जाती है पब्लिक से कि सर किसका लूं? अरे भाई किस तरफ मंकी जा रहा है? इस तरफ जा रहा है ना, तो -18। ओके, एंड वीएम फाइंड करना है। ए कितना है? 54। तो अब क्या करें? वीएम इज ये 54 ये साइड आ जाएगा। हाउ मच इज इट सपोज टू बी? 36। नहीं, एक गलती है इसमें। मैंने इस इक्वेशन में एक गलत चीज लिखी है। शाबाश। किस तरफ बंदर की कूच है? इस तरफ है, सो इट इज नेगेटिव -vm जेंटलमैन। सो vm इज -36 किलोमीटर पर। बरोबर है ये बात? समझ में आ गई? Yes, sir. चलो अच्छी बात है। और तुमको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हो, इंटू 5/18 -10। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके मैं करने जा रहा हूं, वर्कशीट खुला है आपका? मैं करने जा रहा हूं नंबर 59 वर्कशीट का। ओके, वर्कशीट का नंबर 59। 120 मीटर की लंबी ट्रेन है एंड गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, गड्डी जानी है, छलांगा मार दी। मैं ट्रेन बहुत अच्छी बना रहा हूं।
उसमें एक एक ही पहिया होता है। स्पीड कितनी है ट्रेन की? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड। अ बर्ड फ्लाइंग ड्यू ईस्ट, बर्ड किस तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ। ये बर्ड ही है। बर्ड की स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। Crosses the train. Calculate the time taken by the birdie to cross the train. Do you see this? अगर ट्रेन स्टेशनरी होती और बर्ड 5 मीटर पर सेकंड पे उड़ रहा होता तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करता। वी वुड हैव फाउंड आउट d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लगा डालते हो जाता आंसर। बट बर्ड नहीं उड़ रहा अकेला, ट्रेन भी चल रही है साथ में। तो वी हैव टू फाइंड एज ट्रेन एंड बर्ड both are in motion, so velocity of bird with respect to train is, anybody going to tell me what is velocity of bird with respect to train? VBT. और क्योंकि मैं बर्ड का ही देख रहा हूं तो मैं बर्ड को ही पॉजिटिव लूंगा 5। अरे तू किसका देख रही है, मतलब किसका मोशन देख रही है? बर्ड का देख रही है ना, तो बर्ड को पॉजिटिव लेना। ट्रेन को पॉजिटिव लेके तेरे को क्या फायदा मिलेगा? है सीधी बात है। तू ट्रेन को भी पॉजिटिव ले सकती है पर ट्रेन को पॉजिटिव लेके तेरे को कोई 1 रुपए का फायदा नहीं है। एज अ रिजल्ट हम ये करते हैं, तो हम बर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, तो VB5 माइनस, बोलो आगे बोलो। वेरी गुड। तो 5 माइनस माइनस 10 कितना होया? सो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? लेंथ L। स्पीड कितनी है? VBT इनटू टाइम T। तो टाइम T इज L ओवर VBT। भाई लेंथ कितना? 120। VBT कितना? 15। Is this agreeable? सर इसमें मुझे वो पता नहीं चला कि ना ट्रेन को हम पॉजिटिव लेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? तेरा ये आंसर, तू ट्रेन को पॉजिटिव लेगी तो VB माइनस माइनस 15 आ जाएगा। और तू स्पीड माइनस लेके, तेरे को तो टाइम फाइंड करना है, तेरी स्पीड माइनस लेके तेरे को क्या मिलेगा? फिर तू फाइनली इसके बाद बोलेगी ना, ओ वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज -15, तो रिलेटिव स्पीड इज 15। तू यही बोलेगी ना। तेरे को तो टाइम से मतलब है, और टाइम में पॉजिटिव नेगेटिव का क्या फंडा है? कुछ नहीं। तो तू चाहे इसको पॉजिटिव ले या इसको, क्या यहां -15 लगाने से तू यहां -8 सेकेंड लगा पाएगी? पॉसिबल है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो तू यहां तो वैल्यू ही लगाएगी कि 15, बराबर। सो तेरे को किसके क्या देखना है वो तेरे को डिसाइड करना है। फाइनली तो वैल्यू ही चाहिए। ओके ये कौन बतिया रहा है पिछवाड़े में? अच्छा भाई, मैं करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर, रिलेटिव का ही है। न्यूमेरिकल नंबर आ गया, मेरा पेज कहीं चला गया। अच्छा है ना, यहां पे ही है बुक। हाँ, नंबर 3.5, न्यूमेरिकल 3.5। ये मस्त है, न्यूमेरिकल 3.5 क्या है? जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। सो वेलोसिटी ऑफ जेट is 500 kilometer per hour, ejects its products of combustion at the speed of 1500 kilometer per hour relative to the jet. So velocity of combustions with respect to jet is 1500 kilometer per hour. What is the speed of the latter? Latter मतलब combustion with respect to ground. So velocity of combustions
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड करना है। भाई जेट प्लेन पता है तो ये जेट है, और वो जो गैस निकालता है ना उसके पिछवाड़े में से निकालता है, ये इधर से। सो ये वेलोसिटी ऑफ कंबस्टेंस है, ये वेलोसिटी ऑफ जेट है। तुमको क्या पॉजिटिव लेना है तुम नक्की करो, जेट पॉजिटिव लेना है? ओके आपकी इच्छा, आपको वेज कोल्हापुरी खाना है, वेज जयपुरी खाना है, आप बताओ। चलो भाई, वेलोसिटी ऑफ कंबस्टेंस with respect to jet is, who is going to give me formula? अरे 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 ऐसा नहीं करने का, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। कौन बोल रहा है पहले तो? आयुष, आयुष बोल। वी, अरे वी सी जे इज, वेरी गुड विजय, अपना विजय वही बैठा है। अच्छा भाई अब वैल्यू कौन डालेगा? अरे अरे उसको उसकी गलती रियलाइज तो करने दो, तुम लोग जरा गलती होती नहीं चढ़ी जाते उसके ऊपर। प्लीज रिलैक्स, उसको खुद गलती नजर आएगी कि हाँ यार लफड़ा कर दिया। हाँ भाई वीसीजे, हाँ ओके ठीक है, ओके तो माइनस वीसी को वहीं रखते हैं एंड यहां आ जाते हैं -1500 प्लस 500 विच इज, तो वीसी की वैल्यू मिल गई मुझे 1000 किलोमीटर पर आवर। अब कोई मेरे को बोलेगा सर अपने को तो वीसी जी फाइंड करना है, दुनिया में सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही नहीं होता। अगर मैं इसको फेंकता हूं at a speed of 10 meter per second, isn't that 10 meter per second with respect to stationary ground? So everything जो भी स्पीड बोली है संसार में, it is all with respect to stationary ground। अब इसको करने के बाद मैं करने जा रहा हूं नंबर 3.18 न्यूमेरिकल। फटाफट काम चल रहा है, टकाटक दे धमाधम ले धमाधम, जल्दी जल्दी जल्दी। आज चैप्टर खत्म नहीं होगा क्योंकि मेरे को तुम्हारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, मतलब इंटीग्रेशन करना है जो अगले लेक्चर में करूंगा एक फ्रेश माइंड के साथ। इंटीग्रेशन कहाँ यूज होता है, किस तरह किया जाता है, वो मुझे, जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन पे एक पूरा लेक्चर बिताया था, याद है? डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग ब्ला 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 वो किया था हमने, आई थिंक इट वाज लेक्चर नंबर 4 या 3, 4। तो वैसा ही नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, आई थिंक जैसे डिफरेंशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का, उसी तरह इंटीग्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर मैंने बचा के रखा है, उसमें इंटीग्रेशन में धमाधमी मचाएंगे। ओके मैं कौन सा कह रहा था? 18 क्या कहता है? चोर पुलिस का खेल है कुछ, चोर पुलिस। A police van moving on a highway with a speed, velocity of police कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। Fires a bullet at the thief's car, speeding, speed of thief, thief का स्पीड क्या है? 192। अभी ये मुश्किल है, पुलिस का पकड़ पाना मुश्किल है चोर को। अच्छा सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, चलो करो तो कितना हुआ ये? 6 3 18, 6 5 30, 25/3 बरोबर है? 6 3 18, 6 5 30, 5 5 20 बरोबर, एंड इंटू 5/18। ये किससे जाएगा? 6 से जाएगा, 6 3 18, 6 3 18, 6 2 12, 32 इंटू 5, 5 2 10, 160/3 चेक। Yes sir, correct. सही है, ओके। इफ द स्पीड ऑफ द बुलेट
is 150 meter per second. Speed of the bullet, स्पीड बुलेट की है 150 मीटर पर सेकंड. मुझे पता था कि ये मीटर पर सेकंड में, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया. With what speed does the bullet hits the thief car? मतलब we need velocity of bullet with respect to thief. पहली बात तो क्वेश्चन समझने में आया. इंग्लिश में है. अगर एक बार में ही पता चल जाता तो तुम यहां होते और मैं वहां होता. नहीं, मैं वहां होता, तुम यहां होता. ये पुलिस है. ये पुलिस कितनी स्पीड पे जा रहा है? पुलिस वाला वीपी लेट अस से 25/3. ये चोर है और ये कितनी स्पीड पे जा रहा है? 160/3. पहिया दोनों के पास है. अब ध्यान से देखो, पुलिस वाला कितनी स्पीड पे जा रहा है? 25/3. और उसने बंदूक निकाली बाहर हाथ में. फिलहाल बंदूक कितनी स्पीड पे है? 25/3. क्या बंदूक स्टेशनरी है? नहीं. हाँ सर. गाड़ी बैक. सर, हाँ सर. मैं फिलहाल खड़ा हूं और मैंने बंदूक तानी है. फिलहाल इस बंदूक की स्पीड कितनी है? फिलहाल ये सिचुएशन में 0 मीटर. जी. पर अगर मैं पुलिस वाले की गड्डी में बैठा हूं और मैंने पुलिस वाले की गड्डी 25/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और मैंने निकाली बंदूक बाहर. अब बंदूक, मैं, गड्डी सब मोशन में है. कितनी स्पीड पे है हम सब? 25/3 बराबर. सो पहली बात, जब मैं बुलेट छोड़ूंगा तब ऑलरेडी बुलेट को कितनी स्पीड मिल चुकी है? 25/3 बराबर. मैं खड़े रह के बुलेट छोड़ू, सपोज बुलेट की स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड बराबर. पर अगर मैं दौड़ रहा हूं एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और मैं बुलेट छोड़ू, मेरी बुलेट की स्पीड कितनी होगी? 150 प्लस 10. डू यू अंडरस्टैंड दैट? अगर तुम स्टेशनरी हो और तुम गोली छोड़ते हो तो गोली जाएगी 150 मीटर पर सेकेंड से. पर इफ यू आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड यू शूट द बुलेट विल मूव विद अ स्पीड ऑफ 150 प्लस 10. क्योंकि तुम्हारे छोड़ने से पहले, मतलब गोली छोड़ने से पहले, डू यू अग्री, बुलेट भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तो ऑलरेडी थी बुलेट की. क्या आपको बुझा रहा है मैं क्या बता रहा हूं? सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट नाउ VB dash, isn't it VB plus VP? बुलेट कितनी स्पीड से छूटी तो VB ऑलरेडी उसकी है एंड पुलिस वाले की भी स्पीड साथे में है, तो 150 प्लस 25/3 मीटर पर सेकेंड. एंड अब मेरा फॉर्मूला लगाने का टाइम आ गया. वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीफ. हु इज गोइंग टू गिव मी द फॉर्मूला? बराबर ना. तो आओ राजा, माइनस, भाई माइनस माइनस होगा या माइनस अकेला होगा? अच्छा, आई डोंट माइंड. ये नीचे 3 को कॉम्बाइन ले लूं. आंसर क्या है? 25 माइनस 160 कितना होगा? -135. 135/3.
तो 153 जा 450 माइनस 135 बाई 3, 450 माइनस 135 265 नहीं 215 है ना, Yes, sir. Yes, sir. and 215 by 3, 3 7s are 21, 3 1s are 3, 72 करीबन 71.6. Sir, 135 divide हो रहा है. के Sir, यहाँ पे 315 नहीं है. ये हाँ शिट मैन 215 डाल दिया मैंने 235 पकड़ लिया इसको 3 1 3 3 105 देखा। सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, चोर की गाड़ी को बुलेट कितनी स्पीड पे लगेगी 105, और अगर घुस गई तो चोर की गाड़ी को डैमेज कर देगी। ये है लफड़ा। अच्छा, पुलिस वाला स्टेशनरी होता तो हम वीबी डैश कितना लेते 150 बराबर। पुलिस वाले की स्पीड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पुलिस वाला स्टेशनरी है। सपोज किसी ने पुलिस वाले की गाड़ी छीन ली, चोर पुलिस वाले की गाड़ी छीन के भाग गया और पुलिस वाला वहीं से धमाधमी मचा रहा है, तो बुलेट की स्पीड क्या होगी सिर्फ 150 प्लस 25/3 इसलिए ऐड हो रहा है कि पुलिस वाला गाड़ी के अंदर भाग रहा है और उसके साथ उसकी गन और गन के साथ उसकी बुलेट भी भाग रही है। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। ओके, मैं एक इंपॉर्टेंट गोली जिस स्पीड पे बंदूक में से निकल सकती है उसे कहते हैं मजल स्पीड, बराबर। मजल स्पीड, मजल वेलोसिटी मतलब अकेली बुलेट की स्पीड। अच्छा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराना चाह रहा था काफी टाइम से, पर मेरे को ध्यान ही नहीं है। मैं आपको कराना चाह रहा हूं वर्कशीट का नंबर 51। अगर आपका वर्कशीट खुला हुआ है, वर्कशीट का 51 ये कहता है, जिसके पास नहीं है उसको बोल देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 40 किलोमीटर, D is 40 kilometer. A train takes 1 hour to travel this distance. So total time is 1 hour. And the train, after starting from the first station, moves with a constant acceleration for 5 kilometer. Let us say station A से शुरू हो रही है और उसको जाना है B तक। ये पूरा 40 किलोमीटर है, टाइम लगेगा 1 घंटा। It travels from first station with constant acceleration for 5 किलोमीटर। ए से लेकर लेट अस से सी, ये 5 किलोमीटर है एंड वो जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। फिर इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 20 किलोमीटर, लेट अस से सी से डी 20 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है एंड फिर डी के बाद वो धीरे धीरे डेसिलरेशन करके ब्रेक मार रहा है, डेसिलरेशन, और कितने किलोमीटर तक 15 किलोमीटर तक, और फाइनली बी पे आके गाड़ी रेस्ट पे आ जाती है। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। सर अब कैसे करें, इक्वेशन को लेके करें या क्या करें? ये सवाल मेरे को बहुत लोगों ने पूछा कि इक्वेशन को लेके करना है क्योंकि गाड़ी ए से जो शुरू हो रही है वो रेस्ट से शुरू हो रही है, तो v0 इज 0, और फाइनली बी पे भी आ रही है तो इसकी रेस्ट पे ही आ रही है स्टेशन पे गाड़ी 0। इसको इक्वेशन लेके करूं सर या कुछ और? मैं कहता हूं लेट अस डू वीटी ग्राफ। आपने वीटी ग्राफ देखे कभी? देखे ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब मैं इस पूरे सम को वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करके सेटल करूंगा। ध्यान से देखें, ये टाइम है और ये वेलोसिटी। अच्छा, पहले ए से सी में गाड़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है। आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वीटी ग्राफ पता है? बराबर, स्ट्रेट लाइन एंड इंक्रीजिंग स्लोप। तो ये है वीटी ग्राफ फ्रॉम 0 टू लेट अस से इतना टाइम है t1, we'll call this velocity v max। फिर कांस्टेंट स्पीड का वीटी ग्राफ कैसा होता है? टेढ़ा है कि सीधा? सीधा, बराबर। लेट अस से इतना टाइम है t2
और फिर बंदा डेसिलरेशन में है। डेसिलरेशन कैसा दिखता है, बराबर। लेट अस से दिस टाइम इज t3 और फाइनली बॉडी रेस्ट पे आ जाती है। सर इसमें से कैसे करेंगे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा लेके। क्या आप ये जानते हैं, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? डू यू नो दिस? We know, and if we know, we know. Area under VT graph gives distance traveled. Wow! तो सबसे पहला एरिया अंडर ग्राफ 1 मेरे को कोई बताएगा? एरिया अंडर ग्राफ 1, isn't it a rectangle? Sorry, triangle. And what is the area of a triangle? Isn't it half base into height? Yes, sir. What is the height? V max. What is the base? T1. So half Vm T1. Equation number 1. ये एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल देता है, तो ये एक्सीलरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 5 किलोमीटर। Yes, sir. Yes, sir. तो मल्टीप्लीकेशन आता है क्या तुमको? 5 2s are T1 is equal to 10. वाह। अच्छा, एरिया अंडर ग्राफ 2 कितना? एरिया अंडर ग्राफ 2 एनीवन? तो Vm इंटू T2, Vm इंटू T2 कितना है वो डिस्टेंस? 20 किलोमीटर। सो Vm इंटू T2 इज 20। इक्वेशन नंबर 2। आपको धीरे धीरे खुशबू आ रही है आंसर की? एरिया अंडर ग्राफ 3 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डेसिलरेशन में? 15। एनीवन गिविंग मी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल। मैं हमेशा ट्रायंगल रेक्टेंगल बोलता हूं। हाफ Vm T3. बेस लेने का ही नहीं है तुमको, तो 2 यहां पे डाल दूं तो कितना हो जाएगा? Vm T3। Is equal to Wow. 30. Let's add 1 2 and 3। तो क्या मिलेगा? Vm T1 plus Vm T2 plus Vm T3 is 10 plus 20 plus 30। हाँ वो तो मेरे को भी आता है। Vm कॉमन, ब्रैकेट T1 plus T2 plus T3 is 60। but T1 plus T2 plus T3 isn't it total time? and total time कितना लगा रहा है? गुड गुड लिखना पड़ता है। T1 plus T2 plus T3 is T which is 1 hour। और मेरे पास आखिरी में जगह कम पड़ गई, तो इसके लिए इसको उड़ाना पड़ेगा। सो Vm इंटू कितना है? 1 hour is 60। तो Vm is 60 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, सो Vm is 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने बगैर कोई इक्वेशन लिए, बगैर कोई काइनेमैटिक का लिया, मैंने सिर्फ VT ग्राफ करके ये इक्वेशन ला दिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था। ऑलराइट, मैं चाहता हूं आप घर पे इसको प्रैक्टिस करें अच्छी तरह, और ये अच्छा सम था। और आगे आई थिंक अब एक लास्ट सम का बचा है। मैं 56 नंबर कर रहा हूं, 56 वर्कशीट का, एंड दिस इज द लास्ट सम। उसके बाद छुट्टी, घर जाने का, समोसा खाने का, चाय पीने का, और बाकी कुछ और आपको इच्छा हो तो खा पी सकते हैं। अब तक 56 वर्कशीट का। अच्छा, 2 cars A and B are at position 100 meter and 200 meter from the origin at time t equal to 0। मतलब XOA कितना है? 100 मीटर। XOB कितना है? 200 मीटर। ये तुमको इनिशियल पोजीशंस दिया हुआ है। They start simultaneously with velocities 10 meter per second and 5 meter per second respectively। तो VA is 10 meter per second, VB is 5 meter per second। क्या कर रहे हैं?
56, absolutely सही पकड़े. In the same direction, that's important. Calculate the time and position at which they will overtake one another. अच्छा, टाइम भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, एक्स ए ले लो या एक्स बी, कोई भी ले सकते हो. पर सबसे इंपॉर्टेंट है सर शुरू कहां से करूं? शुरू उधर से ही करो जहां से हमेशा करते हो. वी नो द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्स बी माइनस एक्स ए. एक फॉर्मूला जिसने बदल दी थी आपकी दुनिया, एक्सओ बी माइनस एक्सओ ए प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी. ये याद है फॉर्मूला? थोड़ी देर पहले एनकाउंटर हुआ था आपका इसके साथ. when one overtakes the other, जब एक किसी दूसरे से आगे निकलता है तब एक्स बी माइनस एक्स ए कितना हो जाता है बंदो? ओ हो. तो अब क्या करेंगे? अब सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके धीमी आंच पे पकाएंगे और फिर गर्मा गर्म परोस देंगे. एक्सओ बी 200, एक्सओ ए 100, वीबी 5, वीए 10 इंटू टी. कोई कुछ बोलेगा? सर 20 सेकंड. हाँ देगा. ये आंसर का आशिक है ना. तूने आशिकी हमेशा आंसर से ही निभाई. कभी कभी प्रोसेस को भी लाइक कर दिया कर. ओके ओके भाई. पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन इज, अब लोग मेरे को पूछते हैं सर एक्स ए फाइंड करना है या एक्स बी फाइंड करना है? भाई एक्स ए फाइंड करो या एक्स बी, दोनों आने वाले तो सेम ही है क्योंकि एक्स बी माइनस एक्स ए तो 0 है, सेम ही आना है. सो एक्स ए कर लो. ए फॉर एप्पल तुमने बहुत किया था ना. एक्स ए इज एक्सओ ए प्लस वी ए इंटू टी. एक्सओ ए 100, वी ए 10 एंड टी 20. सो 100 प्लस 200 कितना आंसर है? 300 मीटर फ्रॉम दी. आप एक्स बी फाइंड करते ना तो भी यही आता, कोई फर्क नहीं था. फेयर इनफ. तो इस फॉर्मूला के साथ, इस आइडिया के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं. ये जितने भी न्यूमेरिकल किए घर पे जाके 2 बार करना, तब जाके वर्कआउट होगा. एंड मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर एक आध बार तो कर ही देने का, नहीं तो ये फिजिक्स है, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है. अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहा रेगुलर का तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा. मिलते हैं सोमवार को. टेक केयर, बाय बाय.